ایک عورت کی دکھ بھری سچی اب بیتی۔ ہائے اللہ، کتنی پیاری دلہن ہے، بالکل گڑیا جیسی۔ جو کوئی بھی اسے دیکھتا بے اختیار اس کے منہ سے نکل جاتا۔ وہ دھان پان سی چھوئی موئی شرمائی سی چاند سا مکیڑ الف سر نگوں کیے ہر آنے والے کو کن انکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی بہت تعریف سنی تھی، تبھی دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میری شادی صرف 8 دن پہلے ہوئی تھی۔ میں ان کے ہاں نہیں جا سکتی تھی۔ جب ہماری شادی کو کچھ دن گزر گئے تو میں ایک تقریب میں شریک ہوئی اور پاس بیٹھی خاتون سے پوچھا کہ گل خان کی دلہن کون سی ہے؟ عورت مسکرائی اور بولی، وہ سامنے کھڑی ہے۔ میں نے اسے دیکھا تو اس کی معصومیت پر پیار آ گیا۔ نئی نویلی دلہن یوں بچیوں کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی جیسے میکے کی سہیلیوں میں گھری ہو۔ اس کو بالکل احساس نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ وہ سب کی وجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی، لیکن ان کی باتوں سے بے نیاز اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ مننے کھیلنے میں مشغول تھی۔ گل جان بھی موجود تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے اس سے پوچھا، بھائی گل خان، یہ گڑیا کہاں سے لائے ہو؟ اس بیچاری کی ابھی عمر ہی کیا ہے اور تم نے اس کو شادی کے بندھن میں باندھ لیا ہے۔ یہ کیا گھر یلو ذمہ داریاں پوری کر سکے گی؟ وہ بولا، یہ گھریلو ذمہ داریاں کیا پوری کرے گی باجی، یہ تو سارا دن گڑیوں سے کھیلتی ہے یا پھر سوئی رہتی ہے۔ ہاں، اس کے آنے سے اتنا فائدہ ضرور ہوا ہے کہ جب میں نمیکچی سے واپس آتا ہوں تو یہ دروازہ کھول دیتی ہے۔ میں نے پوچھا، گل بھائی یہ کھانا وغیرہ تو نہیں پکاتی ہوگی؟ اس پر وہ ہنستے ہوئے بولا، توے پر روٹی تو ڈال لیتی ہے مگر پلٹنا مجھے پڑتی ہے کیونکہ زکیہ کا کہنا ہے میرا ہاتھ جلتا ہے۔ کچھ کام یہ کرتی ہے اور کچھ میں کرتا ہوں۔ ویسے اس کے آنے سے گھر میں خاص رونق ہو گئی ہے۔ باجی آپ کو تو پتہ ہے کہ والدین کے فوت ہونے کے بعد میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگا تھا۔ بڑی بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، اب وہ بھی کبھی کبھار آ جاتی ہے۔ اچھا بھیا، جب چھوٹی سی دلہنیاں لائے ہو تو پھر صبر کرو، آہستہ آہستہ یہ سب کام سیکھ لے گی۔ میں نے زکی کے معصوم چہرے کی طرف دیکھ کر کہا، جو اپنے دوپٹے پر لگی ستاروں کی بیل سے کھیل رہی تھی۔ میں یہی سوچتی تھی کہ 9-10 برس کی اس چھوٹی سی بچی نے کیا ہنڈیا پکانا سیکھا ہوگا۔ روٹی پکاتے ہوئے جس کے ہاتھ جلتے ہیں تو کیا سالن بناتے ہوئے نرم ہتھیلیاں اور کلائیاں جلتی نہ ہوں گی۔ 5 برس بیت گئے۔ ایک دن جب میں کہ گئی تو سنا کہ گل حسان کی بیوی کے ہاں بچی ہوئی ہے۔ وہ بمشکل 14 برس کی تھی کہ ایک بچی کی ماں بھی بن گئی۔ معصوم بچی نے ممتا کے روپ سے بھی آشنائی حاصل کر لی۔ میں بچی کو دیکھنے گئی۔ زکیہ اب پہلے سے کہیں زیادہ سیانی ہو گئی تھی۔ اب وہ ایک بردباد لڑکی نظر آنے لگی تھی۔ بھولی بھالی صورت پر سیانہ پن آ چکا تھا۔ وہ زمانے کے نشیب و فراز سے واقف ہو چکی تھی۔ شوہر اس سے 20 برس بڑھا دیتا، لیکن وہ اس کی ایسی خدمت کرتی تھی کہ حیرت ہوتی تھی۔ ایک کم سن لڑکی کیا اتنی عقل مند ہو سکتی ہے کہ اس کی روش میں ڈھل جائے اور ایک اچھی بیوی بن جائے؟ گل حسان نے ضرور اس کو بہت پیار دیا ہوگا، تبھی وہ خوش نظر آتی تھی۔ گھر آنے والے مہمانوں کو وہ بڑی گرم جوشی سے خوشش آمدید کہتی تھی۔ ان کا گھر مثالی تھا۔ پھر جانے اس آشیانے کو کس کی نظر لگ گئی کہ گل خان، جو دوسروں کو عقل کی باتیں سکھاتا تھا، چوری کے الزام میں پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ اس کو بہت مار پڑی اور سر پر چوٹیں آئیں۔ بالاخر وہ بے گناہ ثابت ہو گیا تو اسے رہا کر دیا گیا، لیکن اب اس کا دماغی توازن متاثر ہو چکا تھا۔ وہ پولیس کی مار کھا کر نارمل انسان نہ رہا تھا۔ بعض اوقات وہ انتہائی ظلم و تشدد پر اتر کی آتا اور اس کے ظلم کا نشانہ بیچاری زکیہ بنتی تھی۔ کبھی وہ اسے بے تحاشا مارتا اور کبھی کہیں جانا ہوتا تو اسے اپنے ساتھ لے جاتا۔ اسے خوف تھا کہ کوئی زکیہ کو اس سے چھین لے گا۔ ایک دن اس نے زکیہ سے کہا کہ میرے ساتھ جامن توڑنے کے لیے چلو۔ وہ بولی، گھر کا سارا کام پڑا ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، تم اکیلے جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ اسے مارنے لگا۔ بیچاری ڈر کے مارے جانے کو تیار ہو گئی اور چلتے وقت شوہر سے بولی، ذرا ٹھہرو، برقع اوڑھ لو۔ جواب ملا، کوئی ضرورت نہیں برقع اوڑھنے کی، بس ایسے ہی میرے ساتھ چلو۔ بیچاری خوف کے مارے ننگے پاؤں اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اپنی دھن میں شوہر خدا جانے کدھر نکل گیا۔ یہ غریب اس کی اجازت کے بغیر بل نہیں سکتی تھی، لہٰذا بیٹھے بیٹھے اکڑ گئی۔
भूख प्यास के मारे बुरा हाल था। इतने में एक आवारा किस्म का शख्स उधर अलिफ निकाला और जकिया को देखकर बोला, एक खूबसूरत लड़की और अकेली, तुम क्या कर रही हो, आओ चिल्लू मेरे साथ। ये सुनकर जकी घबरा कर रोने लगी। शौहर का कुछ पत्ता ना था कि किसी जानिब निकल गया थे। मैं लड़की नहीं, 2 बच्चों की मां हूं। बदकिस्मती यहां ले आई है। किसी ने आज तक मेरा चेहरा नहीं देखा। ये मेरी बदनसीबी है कि मैं यहां बगैर पर्दे के बैठी हूं। ये सुनकर वो शख्स बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने मुआफी मांगी, कहने लगा, बहन मैं तुमको अकेला देखकर कोई बुरी औरत समझा था। इतने में गिल खान वापस आता दिखाई दिया। जकी ने कहा, भाई यहां से जाओ, मेरा शौहर ज़हनी मरीज है। अगर इसने तुमको मुझसे बात करते देख लिया तो मुझे मार डालेगा। वो आदमी तो चला गया, मगर गिल को शक हो गया कि अजनबी मेरी बीवी से बातें कर रहा था। इसने जकिया को घर ले जाकर बहुत मारा, वो मरते मरते बची। पड़ोसियों ने आकर बताया कि हमने जकिया के रोने चलाने की आवाजें सुनी है। तब मैं खैरियत मालूम करने इसके घर गई। घर में हर तरफ खामोशी। जकिया को आवाज दी, इसने कराकर जवाब दिया, बाजी अंदर इजाओ। वो कमरे में चारपाई पर लेटी होती थी। पास ही इसके बच्चे सो रहे थे। मैंने सवाल किया, जकिया क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, और ये तुम्हारे पांव को क्या हुआ है? मेरी बात सुनकर वो रोने लगी। बोली, गिल खान ने मुझे बेकसूर सजा दी है और मेरे पांव पर बीलच्चा मारा है, जिसकी वजह से ये सूज गया है। बहुत दर्द है। मेरी बच्ची भी बीमार है, मगर मैं चल फिर नहीं सकती, चारपाई से उठ भी नहीं सकती। मैंने देखा कि इसका पांव बहुत जख्मी था, जिस पर उसने हल्दी लगाकर पट्टी बांधी हुई थी। पूछा, तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती? एक तो मुझसे चला नहीं, बता दो कि कल उनकी उम्र से बाहर निकलने देता है। जब जाता है दरवाजे पर ताला लगा कर जाता है ताकि बाहर ना जा सकूं। वो अब कहाँ है? दवा खाकर छत पर गया था। इसकी दवा में नशा होता है। यकीनन गहरी नींद सो रहा होगा। आज तो बैरूनी दरवाजा खुलाते। हाँ, वो कभी कभी दरवाजा बंद करना भूल जाता है। मैंने कहा, अजीब शख्स में है कभी कभी अपने साथ लिए फिरता है और कभी तुमको घर में कैद कर देता है। वाकई वो ज़हनी मरीज है, जो बात जहन में आए वही करता है। अब वो मुझ पर बहुत जुल्म करने लगा है। खदशा है किसी दिन जान से मारने दे। जकी ने दुख से फरियाद की, तुम मैके क्यों नहीं चली जाती? मेरा मैका नहीं है, मेरा तो कोई नहीं है। गिल खान ने मुझे 50,000 रुपए के एवज मेरे चचा से खरीद उठता, और जो चीज बिक जाती है वारिस की नहीं रहती, वो खरीदने वाले की हो जाती है। अभी ये बातें हो रही थीं कि गिल जान जीने से उतर आया। इसने मुझे घोर कर देखा और बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में शापर था। ये लो, पक्का कर खा लेना और बच्चों को भी खुला देना। अब जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। इसने मेरी मौजूदगी को नजरअंदाज कर दिया। गिल हसान सूजी लेकर आया है। शायद इसका दिल हलवा खाने को चाह रहा है। मैंने शापर में झांक कर कहा, ये सूजी नहीं, आधा किलो आटा है। ये रोज ऐसे ही आधा किलो आटा लाता है। इसका ख्याल है कि अगर मैं ज्यादा आटा लाऊंगा तो ये किसी को दे देगी, हालांकि बाजी में किसको दूंगी? मेरे घर कौन आता है? बस ऐसे ही हर बात पर शक करता है। क्या हमसाए तुम्हारी मदद नहीं करते? वो अगर कोई चीज दें तो उनको गालियां देता है, इसलिए वो अब हमारी जिंदगी में मुदाखलत नहीं करते। इसकी हालत और उसकी बातें सुनकर देख हुआ। जकिया बेचारी तो उठ भी ना सकती थी, रोटी कैसे पकाती। मैंने आटा गूंध कर रोटी पक्का दी, क्योंकि गिल खान दूसरे कमरे में जाकर लेट गया था। सोचने लगी कि आधा किलो आटे में ये मजलूम क्या करती होगी। बमुश्किल 2 बच्चों के साथ मियाँ का पेट भरता होगा। फिर वो ज़हनी मरीज था, किसी की मदद भी कबूल ना करता था। जकिया को अक्सर रूखी रोटी के चंद टुकड़े पानी से निगलने पड़ते थे। जब मैं जाने लगी तो जकी इसरार करने लगी कि बाजी अभी मत जाइए। मैंने जवाब दिया कि तेरे मियाँ का कुछ भरोसा नहीं, अभी इसको दौरा पड़े तो मुझे ही धक्के देकर निकाल देगा। हाँ ये तो है, अभी चुप है, शायद इस वक्त दवा खाकर कुछ सुकून में है।
थोड़ी देर बाद में चली आई मगर जहन पर बड़ा बोझ भत्ता। वो दिन निगाहों में फिर रहा था जब ज़किया को दुल्हन के रूप में पहले दिन देखा था। इसे कुछ पतन भत्ता कि इसकी जिंदगी में कितने दुश्वार दिन आने वाले हैं। कई रोज तक इसके बारे सोचती रही कि वक्त ने थोड़े ही अरसे में इसकी हालत बदल डाली थी। रंगत पीली और चेहरे पर जगह जगह झाइयां पड़ चुकी थीं। वो अपनी उम्र से बड़ी नजर आने लगी थी। रोज रोज कोई औरत मार खाए, दहशत में दिन रात गुजारे और उसकी दादरसी करने वाला भी कोई ना हो तो उसके दिल की क्या हालत होगी। दहशत की वजह से वो सभी रहती, किसी के घर जाकर मदद भी तलब ना कर सकती थी। हैरत की बात यह थी कि जब गिल खान सही हालत में होता तो इसको बहुत प्यार करता, मुआफियां तलब करता, रोता, हाथ जोड़ता कि तुम भी मुझे छोड़कर मत जाना, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। और ये सच भत्ता कि गिल खान का ज़किया के सिवा कोई ना था। जब वो बीमारी हो उठता तो रिश्तेदारों ने आना जाना खत्म कर दिया था, क्योंकि वो हर एक को शुबह की नजर से देखता था कि कहीं कोई इससे इसकी बीवी और बच्चे छीन ना ले जाए। इसी सबब वो घर आने वाले की बेइज्जती करता, भत और बीवी बच्चों को ताले में रखता था। गिल खान फ्रूट का काम करता था। अब इसका कारोबार बहनोई ने संभाल लिया था, जो इस बिजनेस की वजह से अमीर हो चुका था। हर माह गिल खान की बहन इसको कुछ रकम दे जाती जिससे वो घर चलाता था। इसकी ज़हनी कैफियत के पेश नज़र इसे इलाज की ज़रूरत थी। जब मूड सही होता वो खुद डॉक्टर के पास चला जाता और जब दिमागी हालत ठीक ना होती दवाएं फेंक देता। कहता कि डॉक्टर ने जहर दे दिया है ताकि मैं मर जाऊं और वो मेरी ज़किया को ले जाए। वो कई बार ज़किया से मुआफ़ी मांग चुका था कि तुमको मारते वक्त मुझे पता नहीं चलता कि क्या कर रहा हूं, इस बार मुआफ कर दो, आइंदा नहीं करूंगा। वो बेचारी मुआफ न करती तो क्या करती, कहां जाती। जब दुख काबिल बर्दाश्त ना होता बहुत रोती और पुलिस वालों को बद्दुआएं देती कि जिन्होंने मार मार कर उसके खावंद की ऐसी हालत कर दी थी। लोग इसका हाल देखकर तरस खाते थे मगर कोई इसको इन दुखों से निजात दिलाने के लिए अमली कदम ना उठाता था। वो तन्हा न थी, 2 बच्चों का साथ था जिसका वारिस उनका बाप था। एक दिन एक भाई ने अबू से कहा कि ज़किया हमारी बच्चियों की तरह है, इसकी हालत देखी नहीं जाती। गिल खान अच्छा आदमी भुत, हम उसको मोरिद इल्जाम नहीं ठहरा सकते। हालात ने इसको बीमार कर दिया है, हमें ज़किया और उसके बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। अबू ने जवाब दिया कि अगर हम ज़किया और बच्चों को गिल खान से जुदा करेंगे तो यकीनन वो पागल हो जाएगा, क्योंकि ज़हनी मरीज होने के बावजूद वो अपनी बीवी और बच्चों को ही सरमाया हयात समझता है। इसका इलाज किसी के पास नहीं भत, क्योंकि वो किसी को अपने करीब फटकने नहीं देता था। गालियां देता, शक करता, हर किसी पर इल्जाम धरता कि तुम लोगों ने ही चोरी का पर्चा कटवा कर मुझे पुलिस से मार पड़वाई थी। इसके जहन से इस वहम को कोई नहीं निकाल सकता। फिर हम क्या कर सकते हैं। अबू ने मायूसी का इजहार किया तो पड़ोसी की हिम्मत भी जवाब दे गई। कुछ दिन गुजरे थे कि पता चला ज़किया घर से गायब है, अपने बच्चों को भी साथ ले गई है। गिल जान पर रद्द अमल तो होना था। वो चीखने चलाने लगा कि मेरी खूबसूरत बीवी को न जाने कौन भगा कर ले गया है, इसने मेरे बच्चों को भी अगवा कर लिया है, मैं इसका खून पी जाऊंगा। फिर ऐसे ही गलियों में मारा मारा फिरने लगा और बीवी बच्चों के इल्म में पूरा पागल हो गया। पड़ोसी हैरान थे कि ज़किया कहां गई, इसका कोई भी ना था। कोई कहता कि इसने बच्चों समेत दरिया में छलांग लगा दी होगी, अपनी जिंदगी से तंग थी, खुदकशी कर ली होगी। कौन किसी को तलाश करता है, महल्ले वालों में से किसी ने इसको तलाश न किया। उल्टा सब ने यही कहा कि शुक्र है अपनी और बच्चों की जान बचा कर चली गई, वरना ये नीम पागल जालिम शौहर इसको किसी दिन मार ही डालता। हैरत की बात यह है कि गिल खान पागल होने के बावजूद सिर्फ ज़किया को मारता था, इस पर शक करता था, मगर अपने बच्चों को नहीं प्यारता था। अहम अपने सामने मां पर तशद्दुद होते देखकर बच्चों की भी ज़हनी हालत मुतासिर हो रही थी। काफी दिन वो गलियों में बीवी बच्चों को तलाश करता रहा। वो बड़बड़ाता था कि कोई मेरी ज़किया को ला दे, किसी जालिम ने इसको मुझसे छीन लिया है। कभी कहता कि अब आएगी तो नहीं मारूंगा, वो इसीलिए कहीं छप गई है। वो इसका नाम ले लेकर पुकारता था। इसने दवा खाना छोड़ दी थी, इसके नजदीक जाने की जुर्रत कोई ना करता। हर कोई इससे डरता था कि ये पागल है, पत्थर उठाकर मार देगा। यूं ही गलियों में फिरते फिरते एक रोज वो गुम हो गया
और दोबारा नजर नहीं आया। काफी दिन इसका घर खुला पड़ा रहा। बहन बहनोई को इत्तला मिली कि गिल खान गायब हो गया है, तब वो आए और घर को ताला लगाकर चले गए। वो दिन और आज का दिन इसके घर में ताला पड़ा हुआ है। जकी का पत्ता चला और ना उसके बच्चों का गिल जान भी लूट कर ना आया। खुदा जाने इसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। मैं पुलिस वालों से इल्तिजा करूंगी कि वो दौरान तफ्तीश हर एक को यूं बेदर्दी से न मारा करें, क्योंकि कुछ लोग बेगुनाह होते हैं। जब उनके पिंडार का शीशा टूटता है तो वो खुद अटूट कर बखर जाते हैं। हर मुल्जिम को एक ही लाठी से नहीं हाँकना चाहिए, क्योंकि इस तरह अच्छे और सेहतमंद ज़हन के लोग भी उम्र भर के लिए बेकार और बर्बाद हो भी जाते हैं।